विष्णुपुर की विरोध सभा। पार्टी की राज्य समिति के सदस्य और मजदूर संघ के नेता कामरेड फरहान ने सभा में भाषण दिया। कामरेड फरहान ने बताया कि कैसे भाजपा शासित केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन देश के सभी मजदूरों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को छीन रही है। बाद में छात्र संगठन के नेता कामरेड सुशांत धीवर ने भाषण दिया। कामरेड सुशांत के वक्तव्य में आया कि कैसे केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में केंद्रीय बजट का 5% आवंटित किए बिना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर छात्रों में फूट डालने की राजनीति कर रही है। पाठ्यक्रम शिक्षा उपकरणों के साथ रिचार्ज की कीमत कम करके वंचित परिवारों के छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश कर रही है। फिर पार्टी की स्थानीय समिति के सचिव और राज्य समिति के सदस्य कामरेड टिटस ने भाषण दिया। कामरेड टिटस के वक्तव्य में आया कि कैसे केंद्र सरकार मिड डे मील राशन सहित विभिन्न परियोजनाओं के आवंटन में कटौती कर रही है या कड़ी जैसे नामों को बाहर करके गरीब मेहनतकश लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। कामरेड ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे विष्णुपुर के बांग्ला भाषी मजदूर वन विभाग राज्य में काम करने गए। ঘটনা আপনাদের সাথে বলছি। এই জয়
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য আপনারা কোনো রাজনীতি করেন না, এটা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে। আজকে এমএলএ তিনি বিজেপি ধ্বজাধারী হয়ে বসে আছেন, যিনি এমপি তিনি আজ 3টে টার্ম হয়ে গেল, 2014 সাল থেকে 2025 পর্যন্ত বিজেপির এমপি হয়ে আছেন। অথচ যারা আজকে কাজ পাচ্ছে না, যারা পরিযায়ী শ্রমিক আপনারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য কটা ব্যবস্থা নিয়েছে এই মন্ত্রী, এটা আমরা সরাসরি প্রশ্ন করছি। যে সকল মানুষ রাজনীতি সচেতন আছেন, ভবনের কাগজে রাখেন, তারা জানতে পারবেন আর কিছুদিন পরে সামনে বিহারে নির্বাচন। সেই বিহার নির্বাচনে আপনারা জানেন যে প্রধান কৃষক বলে এক মন্ত্রী নতুন দল তুলেছেন। সেই প্রধান কৃষকের কথা যদি আমরা শুনি, তাহলে দেখতে পাবেন বিহারে ভোটটা হতে চলেছে, সেটা নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহ বা নীতিশ কুমারকে দেখে নয়। তাদের উপরে যে নির্মম নির্যাতন বা অত্যাচারের খবর আমরা টিভি খবরের মাধ্যমে দেখছি, তার প্রতিবাদ সমাজে আমরা সমবেত হয়েছি। কেন বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, সেই প্রশ্নটা আমরা এই দলের হিসাবে এখানে তুলে ধরবো। আমরা দেখছি যেখানে দেশের মধ্যে বেকারত্বের হার চরম পর্যায়ে গেছে, মানুষ কাজের জন্য ভিন্ন রাজ্যে যাচ্ছে, সেখানে গিয়েও তাদের উপরে চরম অত্যাচার নেমে আসছে। আমরা কিছুদিন আগে বললাম দিল্লিতে জয়হিন্দ কলোনি বলে একটি বাঙালি কলোনি আছে, সেখানে যারা বাঙালি মজদুররা থাকে, সেই বাঙালি মজদুরদের কলোনি সেটা কোনো বড় লোক বা আদানি আম্বানির ম্যাচ নয়, তাই তাদের মনে হয় এই ছোটো ছোটো ভর্তিবাসীদের উপরে আক্রমণটা তীব্র হয়ে নিয়ে আসছে। আমরা দেখলাম এই জয়হিন্দ কলোনিতে কীভাবে দিনের পর দিন বিদ্যুৎ সংযোগকে কেটে রেখেছে দিল্লি বিজেপি সরকার, এবং এই দিল্লিবাসীদের উপরে কীভাবে নির্মম অত্যাচার নামিয়ে আনছে। যারা সেই দিল্লিকে নির্মাণ করে, যারা দিল্লিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, সেই দিল্লি বাঙালি শ্রমিকদের উপরে অত্যাচার আসছে। আমরা দেখি আসামের গোয়ালাপাড়া হাজারের উপরে হিন্দু পরিবার যেখানে বসবাস করে, 100 উপরে পুরোনো মন্দির, সেই মন্দিরগুলোকে বুলডোজার রাজ্যের মধ্য দিয়ে বুলডোজ করে ভেঙে দিচ্ছে। সেখানে সাধারণ হিন্দুরা প্রশ্ন করতে গেলে তাদেরকে পুলিশের লাঠিচার্জ এবং তাদেরকে বাংলাদেশি বলে ডেকে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এও দেখছি যে কীভাবে আমাদের রাজ্য সরকার শুধু রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করে নিজেকে ক্ষান্ত করেছে। সে একবারে দিকে রাজ্যে আমাদের বাঙালি শ্রমিকদের উপর आइसा फिलिस्तीन के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल प्रगतिशील कार्यकर्ता, नागरिक समाज संगठन, छात्र समूह और कार्यकर्ता फिलिस्तीनी लोगों के एक साथ एकजुटता में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नेहरू प्लेस बाजार में एकत्रित हुए। नरसंहारकारी इजरायली राज्य और भारत सरकार द्वारा इजरायल के समर्थन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन अभी शुरू ही हुआ था कि एकाएक विशाल दक्षिणपंथी भीड़ ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हो रहे समूह पर घात लगाकर हमला करना शुरू कर दिया। भीड़ ने जय श्री राम के नारों के साथ हिंसा का आह्वान करके लोगों को परेशान किया और समूह को बाजार से खदेड़ना सही जारी रखा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि फिलिस्तीन समर्थक सभा को परेशान करने में शामिल हो गई। आज की घटना इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज के नैतिक ताने बाने की स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है। जहां नरसंहार रोकने के आह्वान का जवाब हिंसा की धमकियों से दिया जाता है, जहां एकजुटता का असहमत की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। আপনার তো ডিউটি 9টা থেকে সুপার হাসপাতালে, আপনি এখানে ডিউটি করছেন, प्राइवेट चैम्बर क्वेश्चन जो बोलছেন না एक सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल के ओपीडी समय में अपने
मरीजों को देख रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों के मरीज लंबी लाइनों में खड़े हैं। यह तस्वीर पूर्व मेदिनीपुर स्थित आगरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की डॉक्टर ने खींची है। डॉक्टर बाबू को बाहर मरीज देखने का समय सुबह 9 से 11 बजे तक था। डॉक्टर बाबू बाहर नहीं बैठे थे, बल्कि अपने निजी कक्ष में मरीज देख रहे थे। मैंने डॉक्टर बाबू से एक सवाल पूछा तो डॉक्टर बाबू जल्दी से अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। আপনি কোন আপনার তো ডিউটি 9টা থেকে সুপার হাসপাতালে, আপনি এখানে ডিউটি করছেন, প্রাইভেটে চেম্বার করছেন যে কি বলছেন না যা আপনার তো 9টা থেকে ডিউটি ডাক্তারবাবু। আরে পালিয়ে যাচ্ছেন কেন? আপনার তো 9টা থেকে ডিউটি সরকারি হাসপাতালে, আপনি প্রাইভেটের লোক পয়সা দিয়ে এখানে আপনাকে দেখাচ্ছে। 11টা বাজতে যায়। আপনি তো সরকারি ডাক্তার, সরকারি হাসপাতালে ডিউটি আছে, 9টা থেকে তো ডিউটি আপনার। এখনো এখানে কি করছেন? 10:30 বাজে প্রায়। কিছু বলবেন? ডাক্তারবাবু কিছু বলবেন? আপনি কোন প্রাইভেট চেম্বার করছেন, কোথায় করছিলেন? আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন কেন ডাক্তারবাবু, বলুন। 21 जुलाई को हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में उत्तर कन्या अभियान में उत्तर बंगाल से युवक युवतियों का सैलाब उमड़ेगा। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में कही। বর্তমানে যে রাজ্য সরকার 14 বছর অতিক্রম করেছে, সেই রাজ্য সরকার শুধু উত্তরবঙ্গের মানুষকে বঞ্চিত করেছে তাই নয়, উত্তরবঙ্গে তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। ইললিগাল স্যান্ড মাইনিং, নদী থেকে বোল্ডার তুলে নেওয়া, উত্তরবঙ্গের কার্যত বিশেষ কিছু নদীর গতিমুখের পরিবর্তন করে দিয়েছে। আর তার কারণে বিভিন্ন সময় অযাচিত বন্যা তৈরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। প্রায় হাজার হাজার একর জমি, কার্যত চাষযোগ্য জমি ধ্বংস হয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের এই সর্বভৌম চরিত্রের কারণে, তৃণমূল কংগ্রেসের এই লোকের কারণে। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক বা চা বাগানের সমস্যা সমাধান করবার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের একটি যৌথ প্রচেষ্টা দরকার। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্লোগান বা বঞ্চনার অভিযোগ চা বাগানের শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমাদের উত্তরকন্যা অভিযানে এসব একটা বড় ইস্যু। যারা চা বাগানের শ্রমিক ছিলেন ট্র্যাডিশনাল 3 পুরুষ ধরে, তারা আজকে মাইগ্রেন্ট লেবার হয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। ট্যুরিজমের নামে চা বাগানের বেশ কিছু অংশ দখল করে নিয়ে সেখানে রিসোর্ট তৈরি করা। হিউম্যান অ্যানিম্যাল কনফ্লিক্ট আজকে উত্তরবঙ্গে বেড়ে গিয়েছে। কার্যত বহু বিরল প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়েছে। একটা সরকার শুধু মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, মেধার সঙ্গে প্রতারণা করেছে বা গোটা সমাজকে একটা খোলা বাজার বানিয়ে দিয়েছে তা নয়। একটা সরকার প্রকৃতি ধ্বংস করবার কাজে নেমেছে এবং সেটার উপর ভিত্তি করেই আমাদের এই উত্তরকন্যা অভিযান আগামী 21শে জুলাই ডক্টর ইন্দ্রনীল খানের নেতৃত্বে আজকে আমরা সেখানে যাব এবং গোটা উত্তরবঙ্গের যে যুবক যুবতীরা আছেন সেখানে सत्तारूढ़ दल की अनदेखी करते हुए भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने खेजूरी विधानसभा के हलूलबाड़ी क्षेत्र में 14 चुल्ली समबाया कृषि उन्नयन समिति चुनाव में सभी 9 सीटों पर भारी जीत हासिल की। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने कहा, सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई हो। तृणमूल की अराजकता, कुशासन, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और देश निर्माण के संकल्प के लिए बालागढ़ विधानसभा क्षेत्र 3 के एकतारपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत शरीश डांगा गांव के 25 सक्रिय तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थक तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। कोलकाता में एक
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विपक्ष के नेता श्री शिवेंदु अधिकारी के वक्तव्य। विधानसभा का 3 भारतीय जनता पार्टी का विधायक के ऊपर अपने डिस्ट्रिक्ट में 3 प्लेस में 3 हादसा हुआ है। एक हमारी बीजेपी का एमएलए निखिल रंजन दे के ऊपर 3 हाटा कोर्ट के अंदर हमला हुआ था। उसका बाद पिछले हफ्ता गुरु पूर्णिमा का दिन मंदिर में पूजन करने के बाद भाजपा एमएलए वॉरेन बर्मन के ऊपर हमला हुआ और काल हमारे और एक एमएलए माथाभांगा का एमएलए सुशील बर्मन के ऊपर हमला हुआ। मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते और भाजपा एमएलए टीम के लीडर के नाते इस तीनों की इंसिडेंट को मैं घोर निंदा करता हूं। इसके पहले निखिल रंजन दे और वरुण बर्मन को इसको लेकर गवर्नर साहब, स्पीकर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी को ध्यान आकर्षण करने के लिए भी मैं बहुत जोरदार अपील किया था। 3 इंसिडेंट में 3 स्पेसिफिक एफआईआर हुआ। ये जो एफआईआर का कॉपी मैं आपका सामने रख रहा हूँ, देख लीजिए। ये निखिल रंजन दे का इंसिडेंट, ये इंसिडेंट हुआ है सब आरिफुर रहमान से लेकर अमीर आलम से लेकर सब नोटोरियस क्रिमिनल, ये सब लोग ये हमला किया था। निखिल रंजन दे उन्होंने स्पेसिफिक एफआईआर कंप्लेन किया, लेकिन एक भी अरेस्ट भी नहीं हुआ और नॉन बेलेबल सेक्शन में एफआईआर भी नहीं हुआ। ये वॉरेन बर्मन का ऊपर जो इंसिडेंट हुआ 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन, इसका एफआईआर का कॉपी देख लीजिए। इसमें भी जो टीएमसी का गुंडा लोग है, 10 गुंडा जो वीडियो फुटेज में आया है, सब बंगाल का, सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ये लोग का पिक्चर भी आया है। आप लोग नेशनल मीडिया में भी थोड़ा इसको मैंने उल्लेख किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। 3rd इंसिडेंट काल हुआ है 18 जुलाई सुशील बर्मन। ये देख लीजिए किस तरीके से राजवंशी समुदाय का ऑपोजिशन का एमएलए के ऊपर हमला हो रहा है। हमला होने का बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोग कुछ मूवमेंट भी करूंगा। हमारा जितना एमएलए है, मैं सोमवार मांडे नॉर्थ बंगाल में युवा मोर्चा का कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करूंगा, शिरकत करूंगा। उस दिन मैं कुछ बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी है एसपीडीएम, उसका पास बीजेपी का एमएलए टोली जाने का एक प्रोग्राम भी करूंगा। उसका पहले कलकत्ता में स्पीकर और डीजीपी का पास एक ज्ञापन देने का काम भी हम लोग करूंगा। इसके साथ साथ ये 3 एमएलए अपने क्षेत्रों में काम करने का मौका उनको नहीं दे रहा है और चुनाव 8 महीना बाकी है। वहां जो नोटोरियस क्रिमिनल है उदयन गुह मिनिस्टर, पोस्ट पोल वायलेंस में जिसका नाम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हाईकोर्ट में दिया था, उसके अंदर उदयन गुह का भी नाम था। कुछ दिन पहले उदयन गुह जी और जगदीश बसु बासोनिया एमपी कुछ बिहार अगले जनरल इलेक्शन जो बंगाल में होने वाला है 2026 में, इसमें ऑपोजिशन को कोई एजेंट नहीं रहेगा। इसका माहौल बनाने के लिए खुले आम डिक्लेरेशन दिया। उसका बाद मैं वीडियो क्लिपिंग देकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑनरेबल गणेश कुमार जी और सीओ वेस्ट बंगाल मिस्टर मनोज अग्रवाल जी का पास मैं भेजा। इसलिए हम लोग सोचा है 3 एमएलए को लेकर हम लोग जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में भी पुलिस इनएक्शन का डीजीपी और एसपी कुछ बिहार के खिलाफ हम लोग वहां भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तो एमसीसी का बाद इलेक्शन कमीशन का पावर आएगा,
लेकिन अभी लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली स्टेट सब्जेक्ट। ये पुलिस मिनिस्टर, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और एसपी का जो 3 थाने का थानादार है उनका जिम्मेदारी में आता है। ये मैं बता दिया, मेरा पहले मुद्दा था। दूसरा मुद्दा बहुत बढ़िया मुद्दा है। मेरा बगल में हमारी विश्वजीत सरकार जी है। ये इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी डॉक्टर बहन आरजीकर का उनका पिताजी माताजी जो लड़ाई लड़ रही है, अनकॉम्प्रोमाइज लड़ाई, लीगल बैटल और सड़क का लड़ाई, इस तरीके से भाई विश्वजीत भी अपने दम पर, पर्सनल दम पर, उन्होंने जो 4 साल का बहुत लंबा लड़ाई लड़ा, उसमें इस तरीके से 2021 का जनरल इलेक्शन का बाद ब्रूटली, ओपनली मर्डर बाय द टीएमसी लीडर्स एंड गुंड्स, अभिजीत सरकार का ये सब का मोबाइल में पिक्चर। मैं भी कल जब आया है, पुलिस लोग को अरेस्ट किया है, उसका समाचार आते ही मुझे विश्वजीत भाई ने भेजा था। मैं तुरंत मेरा एक चैनल में वो पुराना जो वीडियो है मैं डाल दिया था। वो भी आज सबका मोबाइल में घूम रहा है। इस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस की अंदर जो 57 डेथ हुआ है, 1 लाख से भी ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता, खास करके हिंदू युवा, उसको घर बार छोड़ के भागना पड़ा। इस तरीके से मोलेस्टेशन, रेप हुआ, बहुत लड़की बहन का साथ, दीदी का साथ, बेटी का साथ। जिस तरीके से 12,000 घर बीजेपी वर्कर का आग लगाया, तोड़ दिया और इसके अंदर कुछ शॉप भी है, छोटा छोटा दुकान, तो लूट लिए गया था। इसके ऊपर कोई बड़ा कदम नहीं हुआ है आज तक। लेकिन भाई विश्वजीत का जितना अनकॉम्प्रोमाइज लड़ाई हुआ है, लीगल बैटल, अपने खुद दम पर उन्होंने लड़ा। एंटायर लीगल कॉस्ट पेड बाय विश्वजीत सरकार। वो खूब गरीब बात, माने उनका कोई साधन नहीं है, लेकिन उनका बहुत कॉम्प्रोमाइज करने का लिए बहुत प्रपोजल टीएमसी पुलिस ने भेजा। लेकिन अपने सिर ऊंचा रखते हुए विश्वजीत भाई का जो लड़ाई, उसका नतीजा मिलना शुरू हो गया है। एक तो सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट डालना पड़ा, जिसमें नोटोरियस क्रिमिनल एमएलए टीएमसी और पाल से लेकर 2 काउंसिलर का नाम आया। वो लोग हायर कोर्ट में गया है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, कोर्ट विल कंसीडर द मैटर। लेकिन कल जिस तरीके से ममता पुलिस, ये कलकत्ता पुलिस नहीं है, बंगाल पुलिस नहीं है, ममता पुलिस यह सबसे बड़ा गुंडा पुलिस है। धांधली और ऑपोजिशन के ऊपर जितना भी अत्याचार ये पुलिस ही करता है। नेता प्रतिपक्ष को 86 टाइम हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ा अपने प्रोग्राम करने के लिए। काल विश्वजीत भाई ने अच्छा सबक सिखा दिया। मैं विश्वजीत का ये लीगल बैटल को आभार प्रकट करता हूं। और कोर्ट का जो जजमेंट आया है, और पुलिस का जो नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन का 3 पुलिस अधिकारी को जेल में भेज दिया है, ये बहुत बड़ा कदम है। आज कोर्ट का ऑर्डर भी आप लोग हो गया है, आप देख लीजिए दिन में। ये एक मुद्दा था। इसका साथ साथ मैं बंगाल की और कलकत्ता की जो पुलिस अभी भी ये सब कर रहा है, इसको चेतावनी दे रहा है, आपको ममता बनर्जी और उनकी भतीजा आपको सेव करने के लिए लायक नहीं है। इस तरीके से नारकेलडांगा में हुआ है, आप अभी से थोड़ा बीएनएस के अंदर काम करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करें। अब आपका टैक्स पेयर का रुपया में तनख्वाह मिलता है, आपको जो कानून के अंदर काम करना है करें। 2 दिन पहले ईस्ट मिदनापुर का जो एसपी है मिस्टर सौम्यदीप भट्टाचार्य, उसको भी हाईकोर्ट में एक ऑर्डर आया है, देख लीजिए आप। पिछले महीने नंदीग्राम मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 कोऑपरेटिव का चुनाव था। ये 2 चुनाव में हारने वाला था टीएमसी, लेकिन ये दोनों ही चुनाव का अगले दिन उन्होंने बंद कर दिया पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर।
वहां को जो कोऑपरेटिव का जो शेयर होल्डर है, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, वो लोग कोर्ट में आया था, हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट तुरंत इंटरफेयर किया। देख लीजिए किस तरीके से अनकंडीशनल एपोलॉजी, पर्सनल अपीयरेंस हुआ था, उन्होंने किस तरीके से अनकंडीशनल एपोलॉजी किया है। आईपीएस का सेक्शन 6 पढ़ लीजिए, पश्चिम बंगाल का जितना आईपीएस है, राजीव कुमार से मनोज वर्मा। आईपीएस में सेक्शन 6 में बहुत क्लियर है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मस्ट। ये कोर्ट में जो हालत हुआ है एसपी मिदनापुर का, मैं मांग करूंगा इलेक्शन कमीशन को, इसको जितना दिन तक नौकरी करेगा, एक भी इलेक्शन ड्यूटी में इसको नहीं लगाना चाहिए। जिन्होंने कोर्ट में आपने खुद पॉलिटिकल बायसनेस को स्वीकार करते हुए एपोलॉजी थ्रू एफिडेविट साबित किया है, देख लीजिए ये लोग को 2 सबक पश्चिम बंगाल पुलिस को सिखा दिया है। विजित का इशू में, विश्वजीत का लड़ाई, और दूसरा ये भी आईपीएस को मैसेज दे दिया कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि आप सेक्शन 6 को वायलेशन करते हुए बंगाल में जो बायस पॉलिटिक्स कर रहा है, ये नहीं चलेगा। देश के संविधान और आईपीएस का जो रूल्स, इसमें इसको इजाजत नहीं है। मैं सोमदीप भट्टाचार्य के खिलाफ नॉट ओनली द इलेक्शन कमीशन, मैं वो सेंट्रल कैडर का ऑफिसर है डीओपीटी में, मैं रिटन कंप्लेंट करूंगा कि ऑर्डर कॉपी को एनेक्स करते हुए। ये 2 मेरा मुद्दा था, मेरा मुद्दा खत्म हो गया। मैं आगे बंगाल से एक दो মিনিট আমি করে দেবো। আমার একটা মিটিং আছে, অলরেডি একটা মিটিং আছে আধ ঘন্টা। ये एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए देखिए एमएलए जिनका पास सीआईए से सिक्योरिटी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोटेक्शन है, चुने हुए इलेक्टेड एमएलए है, लॉ मेकर्स है, उनका सिक्योरिटी नहीं तो बंगाल का आम जनता का सिक्योरिटी कैसे? ये बहुत बड़ा मुद्दा। ये लोग महल बना रहा है, चुनाव होगा तो ये हार जाएगा, बुरी तरीके से हार जाएगा। इसलिए अभी से एमएलए लोग को टारगेट करके, खास करके कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ एरिया में ये लोग गुंडागर्दी बहुत जोर से चालू कर दिया। ये पार्ट ऑफ बीरभूम, पार्ट ऑफ बांकुड़ा, ये सब में वेस्ट मिदनापुर, ये सब चालू कर दिया। बनता कल पाकिस्तान के एक्स प्लेयर और इंडिया का कुछ एक्स प्लेयर, इन लोगों के बीच एक फ्रेंडली मैच होने वाला है। पहलगाम अटैक के बाद जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ ओपन हो चुका है, देश प्रेम के ऊपर ये खेल इसमें बीजेपी का नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका टिप्पणी ले लीजिए। मैं स्टेट में काम करता हूँ, मेरा लिमिटेशन जुरिडिक्शन स्टेट के अंदर रहना चाहिए। इंडी अलायंस तो खत्म हो गया, 2024 में खत्म हो गया। चुनाव में जब उनको पूरी तरह हारना पड़ा, मोदी जी 3rd टर्म का प्राइम मिनिस्टर बन गया, उस दिन ही ये इंडिया अलायंस खत्म हो गया। इंडिया अलायंस कहाँ है? दिल्ली में आपस में लड़ाई किया, हरियाणा में आपस में लड़ाई किया, हर स्टेट में आपस में लड़ रहा है। एक देश को इसका नाम है, एक कोई मुद्दे के ऊपर कोई नीति के आधार पर नहीं हुआ। ये कुछ भ्रष्टाचारी, कुछ परिवारवादी अपने परिवार को बचाने के लिए और ईडी, सीबीआई, आईटी से बचने के लिए एक साथ जुड़ गया था, लेकिन जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इतना गलत कैंपेन किया चुनाव का दौरान, लास्ट लोकसभा चुनाव, इतना भ्रम पैदा किया, इसका बाद भी ये लोग का तो आंकड़ा 100 नहीं पार नहीं किया, 99 में सीट्स बन गया। वो तो युवा मोर्चा को दिया है, युवा मोर्चा पालन करेगा, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ये प्रोग्राम मैं पार्टिसिपेट करूंगा, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय दी बंगाल यूथ युवा मोर्चा। टीएमसी का जो 21 तारीख का है, उसके लिए भी हाईकोर्ट, वो तो टीएमसी कोई पार्टी नहीं है, एक कंपनी है, परिवारवादी पार्टी। ये ममता बनर्जी खुद ने कोई हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को पालन नहीं करता। ये दोनों को लिए बताया था 25th 1/4, ये नहीं दिया है। वो जो
2016 का एसएससी नोटिफिकेशन करने बताया, जो पुराना कानून से वो नया कानून बना दिया। वो जो टेंटेड है उसको एप्लीकेशन अलाउ कर दिया। तो कौन आपका कोई हाईकोर्ट को ये लोग नहीं, हाईकोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं मानता है। जो डीए वाला केस है उसका तो कॉन्टेम्प्ट पिटीशन भी पेंडिंग है, रिव्यू पिटीशन भी पेंडिंग है, उसमें तो कोर्ट को सम्मान नहीं करता। इसलिए ममता बनर्जी को 5 लाख रुपया नंदीग्राम केस में इलेक्शन पिटीशन में 5 लाख रुपया अपने खुद अकाउंट से चेक के द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट का बार में डिपोजिट करना पड़ा। ऑनरेबल जस्टिस कौशिक चंद्र के खिलाफ उन्होंने अपशब्द की यूज किया, उसका खिलाफ उन्होंने कॉग्निजेंस लिया था। ममता बनर्जी को 5 लाख रुपया फाइन किया, उनको उनकी 5 लाख रुपया कलकत्ता हाईकोर्ट बार में देना पड़ा। ये ओनली प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड चुने हुए कोई बड़ा मुख्यमंत्री मंत्री है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिनको हाईकोर्ट में 5 लाख रुपया फाइन देना पड़ा। इसलिए कोर्ट का ऑर्डर पालन करने का मैं एक वीडियो देख रहा था। पश्चिम बंगाल विधानसभा का एक बड़ा मुखिया, उन्होंने बताया था कोर्ट जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, तो ये नहीं है भाई। प्रोफेसर ही इज ऑल्सो ए लॉयर, आप थोड़ा कलेक्ट कर लीजिए। नहीं नहीं भूल, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होने का बाद वर्चुअली डीजेडसीसी में जो दुर्गा पूजा हुआ था, जो राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, पहले इनॉग्रेशन उन्होंने वर्चुअली किया। आज नहीं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होने का बाद हर साल दुर्गा पूजा का साथ उन्होंने जोड़ने का काम किया है। मोदी जी हर भारतीय जो धर्मीय कार्यक्रम है, वो नवरात्रि हो सकता है, दुर्गा पूजा हो सकता है, रामनवमी हो सकता है, सावन का महीना हो सकता है, वो हनुमान जयंती हो सकता है, तो जागरण हो सकता है, दीपावली, काली पूजा हो सकता है। सब में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जो कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर, वो मानते हुए पार्टिसिपेट करता है। उनके ऊपर ये लोग का जो ये मुहा मित्र खुद माता काली को जिस तरीके से एक एन्क्लेव में, नेशनल चैलेंज में सीधा सीधा जिस तरीके से गाली दिया, सीधा गाली दिया। पुराना क्लिप निकल कर आप देख लीजिए ना। माता काली मांस खाने का ठाकुर है, माता काली स्मोक करती है, दारू पीता है, क्या क्या क्या, वो मेरा मुझसे नहीं आएगा, मैं हिंदू संतान हूं, इस तरीके से गाली दिया। वो क्या सेंटिमेंट समझेगा? ये लोग भाषा के नाम पर, अपने समाज के नाम पर, अपने अपने जो रिलीजियस परफॉर्मेंस है, इसको तोड़ने का काम बहुत दिन से टीएमसी कोशिश कर रहा है। टीएमसी पहले बताया था रामनवमी हो तो यूपी का प्रोग्राम है, लेकिन इस बार बंगाल में रामनवमी 2025 में 1.5 करोड़ हिंदू जनता ने जय श्री राम का नारा बोला है। ये जो दीवार था, दीवार टूट गया है। अभी बंगाल में गणपति उत्सव 30,000 एरिया में होता है, 30,000। आज बंगाल में भी हमारी माँ बहन दीदी सूर्यदेव का पूजा, छठ की पूजा करती है, और पटना में, लखनऊ में भी दुर्गा पूजा धूमधाम से होता है। ममता बनर्जी को ये जो कल्चर जो बांटो, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र का बाद सनातनी समाज बांटने वाला नहीं है। ये बांटने का जितना भी कोशिश करे, बांटने वाला इस बार नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में नहीं बांटा, बिहार में भी नहीं बांटेगा, बंगाल में भी बांटने वाला नहीं है। एक रुझान आप कालीगंज बाई इलेक्शन में देख लिया, 72,000 हिंदू वोटर ने वोट किया, जिसमें 52,710 वोट्स, दैट मीन्स 72.60 हिंदू वोटर बीजेपी के ऊपर आस्था रखा, 73%। बंगाल में जब 70% से ज्यादा हिंदू एक साथ आदिवासी को लेकर वोटिंग करेगी, तब नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर ही एक सरकार, राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार बन जाएगी। ये चक्कर में हिंदू लोग पड़ने वाला नहीं है। जय श्री राम भी होगा, माता काली भी होगा, और सावन के महीने
जलाभिषेक चल रहा है। हर हर महादेव यो। बिहार में हत्या करने के बाद भाजपा शासित राज्य के माफिया ममता के राज्य पश्चिम बंगाल में शरण लेंगे, ऐसा सवाल माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने उठाया है। कि पश्चिम बांग्ला की शेषमेश গ্যাংস্টার দুষ্কৃতী গুন্ডা খুনে বাহিনী জঙ্গি তাদের সবার আশ্রয়স্থল সেফ হেভেন কি করছে পশ্চিম বাংলা, কি করছে তার সরকার, কি করছে তার ব্যবস্থাপনা? আর সেফ হেভেন যদি হয় পশ্চিম বাংলা কারো না কারোর সঙ্গে তার যোগাযোগ আছেই, আর পশ্চিম বাংলা মানে এখন তো সবই শাসনতল, তাহলে এই উত্তর তো দিতে হবে। পাশে বিহার, তার উত্তরপ্রদেশ, বিহার তার পাশে ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ঝাড়খণ্ড না, সেফ হেভেন পশ্চিম বাংলা। আমাদের গোটা রাজ্যের মানুষের মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে, বাংলার মানুষের নিরাপত্তা বলে কিছু থাকছে না, বাংলাটা এখন জঙ্গিদের সেফ হেভেন। भाजपा का मतलब बंगाल विरोधी, मतलब बंगालियों की भी विरोधी। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ ने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषियों पर हो रहे क्रूर अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के नाम पर बंगालियों को जबरदस्ती अरेस्ट कर रहे हैं। बोलने की आजादी हमसे छीनी जा रही है, लिखने की आजादी छीनी जा रही है। ये जो मोदी सरकार की जो तानाशाही है, इस तानाशाही के खिलाफ महिलाएं एक होकर सड़कों पे उतरे और लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे। जो पुलिस भी उन्हीं के साथ है। और आज मालदा जिले के मनिकाचक में एसएफआई के राज्य सचिव देवांजन डे के स्पष्ट शब्द, राज्यव्यापी छात्र परिषद चुनाव आम छात्रों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एसएफआई के आंदोलन का समर्थन करें, सभी के लिए शिक्षा और रोजगार की मांग करने वाली वाम मोर्चा सरकार चुने। কলেজের গেটে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখছি কলেজের যে মাঠ, কলেজের মাঠ জুড়ে শুধু মদের বোতল পড়ে আছে। বাইরে থেকে বহিরাগত গুন্ডারা, তৃণমূলের মাতব্বররা, তারা প্রতিদিন কলেজের ভেতরে গিয়ে ওই মৎসবের আসর বসায়। মেয়েরা আর কলেজে যেতে ভরসা পাবে, ছেলেপুলেরা আর কলেজে গিয়ে পড়াশোনা করবার আগ্রহ দেখাবে, ইচ্ছা যাবে না। भाजपा राज्यों में बंगाली स्पीकिंग प्रवासी श्रमिकों पर हमले और लोगों की साजिश के खिलाफ मतदाता सूची के विशेष संशोधन लोगों की साजिश के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर अभियान के हिस्से के रूप में कन्नगर, मंथेश्वर, बेहला, सतीगाछिया में विरोध प्रदर्शन।